So let's begin our module number 3 of chapter number 6, the Bhakti and Sufi traditions. So far we have learned about the development of Bhakti tradition in the southern India. So there were two kinds of Bhakti traditions that developed. First was that of the Alvas and the Niyamas, and next was the Vishiva tradition. Now, in today's module, we are going to focus on the coming up of Islam and the establishment of Islam in northern India. And we will see that why these Bhakti traditions like the Alvas and Niyamas, which challenged the society in the southern India and actually challenged the Vedas, they didn't emerge in the northern India. So let's begin our module. सो नॉर्थ इंडिया में इस टाइम पे ये माना जाता है कि काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे पॉलिटिकली स्पेशली द पीरियड फ्रॉम 8th century to 18th century we see the rise of various kingdoms and initially it was of the राजपूत्स क्या थे पहले छोटे छोटे क्लैंस थे ट्राइब्स थी जो अब एक पावरफुल एम्पायर क्रिएट करना चाहते थे तो इसलिए उनको उसके लिए पेट्रनेज की ज़रूरत थी और इसलिए वहाँ पे जो ब्राह्मण्स पहले से हैं जिनका पहले से प्रिडोमिनेंस था उन्हीं को इम्पोर्टेंस दी जाती थी इसीलिए कोई भी ऐसा नॉर्म या फिर कोई भी ऐसा ट्रेडिशन नहीं आया जो कि ब्राह्मण्स को डायरेक्टली चैलेंज करे. There was no attempt to question their position directly. At the same time, there were other religious leaders who were out of the orthodox Brahminical system and were gaining ground. लेकिन काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम्स एंड काफ़ी सारे ऐसे रिलीजियस डेवलपमेंट्स भी थी जो हो रही थी लेकिन वो बहुत लिमिटेड थी क्योंकि वो क्या थी उसमें रीजनल वेरिएशंस थी और वो छोटे छोटे रीजन्स में ही डेवलप हो रहे थे जैसे कि अल्वाज और नयमाज है तो वो साउथ में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड लिया था उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि जो रूलर्स हैं जो किंग्स हैं उनको अभी भी ब्राह्मण्स का ही पेट्रनेज रिक्वायर था कहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में और नॉर्दर्न इंडिया में एक और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था वो था द कमिंग अप ऑफ द टर्क्स सो जो टर्किश थे उन्होंने अपना कॉन्कर किया पूरा नॉर्दर्न इंडिया से उन्होंने स्टार्ट किया था और कॉन्कर करते करते दे एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया तो इसलिए जितने भी सारे नाथ जोगीज और सिद्धक्स थे जो कि इस टाइम पे एक डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन के साथ पर्टिकुलर रीजन्स में डेवलप हो रहे थे वो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए क्योंकि एक एंटायर एक नया ट्रेडिशन एक नया रिलीजन डेवलप हो रहा था नॉर्थ इंडिया में So therefore, the coming up of the Turks and the coming up of the Sufis with them played an important part in the developments of the religious ferment in North India. Now we are going to study what happened with the coming up of Turks and how the Islamic traditions developed. So firstly, Muhammad bin Qasim ने कॉन्कर किया था सिंध 1711 AD में. Sindh became part of the Caliph's domain. During the 13th century, the Turks and Afghans established the Delhi Sultanate. Islam was thus recognized as the religion of several areas. This continued with the establishment of the Mughal Empire. तो बिगनिंग कहाँ से हुई इसकी टर्किश इन्वेजन से और उसके बाद फिर उन्होंने सबसे पहले क्या स्टैब्लिश करी दिल्ली सल्तनत एंड देन दे वेंट ऑन टू स्टैब्लिश द मुगल एम्पायर और इनका चीफ रिलीजन क्या था इस्लाम. जो मुगल रूलर्स थे वो गाइडेड थे उलेमा से which were expected to ensure that they rule according to the Sharia. So ulemas they were basically the learned people of the Islam जो कि Sharia means the laws means कि जो laws हैं जो भी मुस्लिम रूल किस तरह से चलेगा that is the Sharia for the Muslim basically the constitution for the Muslim rulers in the earlier times. Also जितने भी लोग थे अलग अलग लोग थे जो कि इनके रीजन में रहते थे विच इंक्लूडेड नॉन मुस्लिम्स एज वेल who were termed as the Zimmis. The Zimmi means protected and is derived from Arabic word Zimma means protection. It was developed for the people who followed revealed scriptures such as Jews and Christians and lived under the Muslim rule. और जो नॉन मुस्लिम थे जिन्हें कि जिम्मीज भी बोला जाता था उन्हें क्या पे करना था पड़ता था टैक्स जो कि था जजिया एंड रिसीव प्रोटेक्शन फ्रॉम द मुस्लिम. और इंडिया में इस टाइम पे जो हिंदूज थे उनको भी जजिया पे करना पड़ता था.
सेवरल रूलर्स ने लैंड एंडोवमेंट्स भी दिए और लैंड ग्रांट भी किया हिंदूज, जैना, ज़ोरास्ट्रियंस, क्रिश्चियन एंड ज्यूइश रिलीजन्स को, बिकॉज दे वांटेड टू रूल द पैन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसलिए उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि अपार्ट फ्रॉम द मुस्लिम्स टू इंक्लूड नॉन मुस्लिम्स इन देयर एम्पायर एज वेल। सो दिस showered respect and devotion towards non-Muslim religion as well. नाउ द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। तो जो इस्लाम है उसके हम बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे पहले, एंड देन व्हेन वी विल मूव टू द सूफिज़म। सो जो इस्लाम है, द 5 पिलर्स ऑफ फेथ इन इस्लाम्स includes that there is one God, Allah, and Prophet Muhammad is his messenger, that one has to offer prayer 5 times a day, one has to give alms, one has to fast during the month of Ramzan, and one has to perform the pilgrimage to Makkah, that is also known as Hajj. The universal feature of Islam declined due to the sectarian practice, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, द शियाज एंड द सुन्नी। तो जैसे जैसे उसमें सेक्ट्स अलग अलग डेवलप होते गए, वैसे वैसे जो इसका यूनिवर्सलाइजेशन है कि एक रिलीजन है या फिर एक प्रैक्टिसेस हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, स्लोली स्लोली दे स्टार्टेड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सेक्ट्स। सो देयरफॉर वी सी कि जो मॉस्क हैं स्पेशली वो अलग अलग तरह से बन रही हैं। जैसे कि इफ़ वन मॉस्क इज़ built in the southern region of India, then it will help that it will have the influence of not only the Islamic tradition but also the Indian tradition. Also, Arab Muslim traders who settled in Malabar coast adopted Malayalam language and matrilineal system. Matrilineal system means the one where the mother's side or there is dominance of the women, not the men, against the patriarchal society. और जैसे कि मैंने बताया कि हर तरह से जो लोकल ट्रेडिशन है उनके हिसाब से मॉस्क का जो आर्किटेक्चर है वो भी चेंज होने लग गया था।